temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. For the past 2 weeks, we've been studying the topic Finding and Walking in Your Destiny. पिछले कुछ हफ्तों से हम इस विषय के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, अपने मंजिल को पाना और उसमें चलते चले जाना। And we saw the first week, the way you can come into your destiny is number 1, receiving Jesus into your life. That is the first step. और पहले हफ्ते हमने देखा कि अपने जीवन की मंजिल को प्राप्त करना, यानी पहले अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करना, और यही तो सबसे पहला कदम होता है। Because until and unless you commit your life to Jesus, your direction is in the wrong direction. क्योंकि जब तक कि आप अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित न कर दें, तो आपकी दिशा जो है वो तो हमेशा गलत दिशा होती है। God's destiny for you is a good destiny. परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी मंजिल रखी हुई है। God has good plans for your life, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए अच्छी योजनाएं रखी हैं, not evil plans. और ये बुरी योजनाएं नहीं हैं। And He wants to give you an expected end, that is heaven with Him forever. और वो आपको अपेक्षित अंत देना चाहते हैं, यानी हमेशा हमेशा के लिए आपको स्वर्ग में रखना चाहते हैं। But unfortunately, most of us are going in the wrong direction. लेकिन दुर्भाग्यवश हम में से ज्यादातर लोग गलत दिशा में ही जा रहे हैं। Unless you come to know Jesus, everyone is in the wrong direction. जब तक कि आप प्रभु यीशु को न जान ले, हर एक व्यक्ति गलत दिशा में ही होता है। There is only one way to come to know God. परमेश्वर को जानने का एक ही तरीका है। Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except by me. यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और कोई भी मेरे बिना परमेश्वर पिता के पास में नहीं आ सकता है। And I said first week we said the way to come to know Jesus is to believe that He is the Son of God. और पहले हफ्ते हमने यही कहा कि यीशु मसीह को जानने का बस एक ही तरीका है, और वो ये है कि हमें विश्वास करना है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। Because of His great love for us, हमारे लिए उसके महान प्रेम के कारण ही that He died on the cross for our sins. वो तो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। Though He committed no sin, हालांकि प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, our sin were put upon Him and He died for us. लेकिन हमारे पाप उस पर लाद दिए गए और वो हमारे लिए वहां पर मर गए। When you believe in that, जब आप इस पर विश्वास करते हैं, and when you confess with your mouth that Jesus Christ is the Lord, और जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु the हैं, Bible says in Romans 10 that you will be saved. बाइबल रोमियो अध्याय 10 में इस तरह से कहती है कि आप उद्धार पाएंगे। Believe in your heart that Jesus Christ is the Son of God. अपने हृदय में विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र हैं, Believe that He died on the cross for you, और विश्वास करना है कि वो क्रूस पर आपके लिए मरे, and confess with your mouth that He is God and He is your Lord and Savior, you will be saved. और अपने मुंह से अंगीकार करना है कि वही प्रभु है और वही उद्धार करता है, तब आप उद्धार पाएंगे। That's what the Bible says. यही बाइबल कहती है। And when you accept Jesus Christ, जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, your direction which was in the wrong direction will turn in the new direction. आपकी दिशा जो कि पहले गलत दिशा में थी, अभी वो बदल कर नई दिशा हो जाएगी। You will come into alignment with God. आप परमेश्वर के साथ मेल करेंगे, And from then on, you will walk in your destiny that God prepared for you. और तब से आगे आप उस मंजिल में चलेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी है। Last week we saw that और पिछले हफ्ते हमने इसे देखा है। even after coming to know Christ also, मसीह यीशु को जानने के बाद में भी you have to daily renew your mind आपको प्रतिदिन अपने मन को नया बनाते जाना है, so that you can find the perfect will of God day by day. ताकि आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानते चले जाएं। Our mind is a carnal mind, a fleshly mind, हमारा जो मन है ये तो शारीरिक मन होता है, and it's always subject to evil thoughts and evil desires. और ये तो हमेशा बुरे विचार और बुरी मनसाओं को ही करता है। We must make an effort to bring our mind into subjection to the Word of God. हमें परिश्रम करना होगा ताकि अपने मन को परमेश्वर के वचन के अधीनता में लेकर आए, परमेश्वर के वचन के वश में लेकर आए।
And last week we said you must take time and a decision that I will spend at least the first hour with the Word of God. और पिछले हफ्ते हमने कहा कि हमें समय निकालना होगा, निर्णय लेना होगा कि मैं दिन का पहला घंटा परमेश्वर के वचन के साथ में ही बिताऊंगा। Study the Bible chapter by chapter, meditate on it and understand and obey it. बाइबल के एक एक अध्याय का आप अध्ययन कीजिए, इस पर मनन कीजिए और इसकी आज्ञाओं को मानिए। As the time you spend with the Bible, the more time you spend, the more your mind is renewed. जितना ज्यादा आप बाइबल के साथ में समय बिताएंगे, जितना ज्यादा आप इस पर मनन करेंगे, आप उतने नए होते जाएंगे। Now we come to the third important thing to find your destiny and fulfill it. अपनी मंजिल को पाने और उसे पूरा करने के लिए अब हम यहाँ पर तीसरे पॉइंट में आ चुके हैं। Remove every idol from your heart. आपके हृदय से हर एक मूर्ति को निकाल देना है। Idol, I'm not talking about a figure that is made outside. देखिए, मूर्ति या बुत, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा कि जो कि बाहर में बनाई गई है। I'm talking of the things in your life which take importance in your life, more importance in your life. मैं उन चीजों के बारे में या उन वस्तुओं के बारे में कह रहा हूं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा समय और महत्व ले लेते हैं। Anything that you love more than you love God is an idol for you. परमेश्वर से बढ़कर आप किसी भी वस्तु से अगर प्रेम करते हैं तो वो आपके लिए बुत है। One very big idol is money. और सबसे बड़ा जो बुत है वो तो पैसों का है। People to get more money will do anything, any evil. The love of money is the root of all evil, the Bible says. लोग तो और पैसा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी बुराई करते हैं। बाइबल इस तरह से कहती है कि धन का लोभ, रुपयों का लोभ ही सारी बुराई की जड़ होती है। Even sports can be a big idol. यहाँ तक कि खेल कूद जो है या जो क्रीड़ा है वो भी एक बहुत बड़ा बुत हो सकती है। People spend hours and hours in sports and watching cricket and watching all those things and very little time with God. बहुत से लोग जो हैं वो तो कई घंटों तक टीवी देखते रहते हैं, क्रिकेट देखते रहते हैं और परमेश्वर के लिए उनके पास में बहुत ही कम समय होता है, वो खेल कूद देखते रहते हैं। Many things can become idols. बहुत सी ऐसी जो चीजें हैं वो हमारे जीवन में बुत बन सकती है, परमेश्वर की जगह ले सकती है। Whatever takes your time, जो कुछ भी जो आपका समय ले लेती है, whatever you give more importance, आप जिससे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, whatever you love more, आप जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, even your own family members यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्य भी can become an idol. ये तो आपके लिए बुत हो सकते हैं। Your children, your wife, your husband, your own family, you can love them so much that it takes precedence over the love for Christ. आपके बच्चे, आपकी पत्नी या आपके पति या आपके परिवार वाले लोगों से आप इतना ज्यादा प्रेम करने लगते हैं कि मसीह से आप कम प्रेम करने लगते हैं। And Jesus said in Matthew chapter 10 and verse 37, यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 10 वचन 37 में इस तरह से कहा है, He that loves father, mother more than me is not worthy of me, and he that loves son, daughter more than me is not worthy of me. जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। What if you love things more than Jesus, you're not worthy of Jesus. अगर आप यीशु से बढ़कर दूसरी वस्तुओं से ज्यादा प्रेम रखते हैं तो आप उसके योग्य नहीं हैं, And those things will become an idol to you. और वो सब कुछ आपके लिए एक बुत हो जाएगा। The problem with this having an idol in your heart is it will block you from finding the will of God. आपके दिल में ऐसे बुत होने में समस्या ये है कि ये आपको परमेश्वर की इच्छा जो आपके लिए है उस इच्छा को जानने में रुकावट डालती हैं। It's found in Ezekiel chapter 14 and verse 1 to 5. यहजकेल अध्याय 14 वचन 1 से 5 में हम इसे देख सकते हैं। Ezekiel was a prophet. यहजकेल एक भविष्यवक्ता था, And in one day the elders of Israel came and sat in front of Ezekiel. और एक दिन इस्राएल के प्राचीन आकर इस्राएल के सामने बैठ गए। It says in verse 1, Then came certain of the elders of Israel unto me and sat before me. वचन 1 कहता है, फिर इस्राएल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। Verse 2 and 3 says, And the word of the Lord came to me, saying, Son of man, these men have set up their idols in their heart, and they put the stumbling block of their iniquity before their face. Should I be inquired of at all by them? वचन 2 और 3 कहता है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इस तरह से परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं। We'll read from verse 4. वचन 4 में आगे देखिए, Therefore speak unto them and say, Thus says the Lord God, every man of the house of Israel that sets up his idol in his heart and puts the stumbling block of his iniquity before his face, and then comes to the prophet, I, the Lord, will answer him
that which comes according to the multitude of his idols. इसीलिए तो उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। इस तरह से यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अगर ऐसे लोग आए तो वो उन्हीं के अनुसार उन्हें उत्तर देने वाले हैं। God says, I will answer you according to the multitude of your idols. परमेश्वर कहते हैं कि उनकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा। It's a big warning. यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। When you try to come to find the will of God and keep idols in your heart, you are deceiving your own self. जब आप परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने आते हैं और आप अपने दिल में अपनी मूर्तों को रखते हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। In other words, you don't have respect for God. दूसरे शब्दों में आपके पास परमेश्वर के लिए कोई आदर नहीं है। You keep something else that you love more in your heart, and yet you want to find the will of God. आप अपने दिल में परमेश्वर से बढ़कर कुछ रखते हैं और फिर भी परमेश्वर की इच्छा ढूंढना चाहते हैं। And when you have idols in your heart, God warns you that He will answer you according to those idols. और जब आप अपने दिल में ऐसी बुतों को रखते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि उन्हीं बुतों के अनुसार परमेश्वर आपको उत्तर देते जाएंगे। The best example I can give you from the Bible. बाइबल में से मैं आपको सबसे उत्तम उदाहरण दे सकता हूँ। It is a story of Balaam the prophet. ये तो बिलाम जो भविष्यवक्ता था उसकी कहानी है। He was not a prophet of Israel. वो तो इस्राएल का भविष्यवक्ता नहीं था। Maybe he was a false prophet. शायद वो कोई झूठा भविष्यवक्ता होगा। But he was a prophet who could see visions and who could discern spiritual things. लेकिन वो ऐसा भविष्यवक्ता था जो दर्शन देख सकता था, आत्मिक बातों का अर्थ बता सकता था। It is found in the book of Numbers chapter 22. गिनती अध्याय 22 में हम उसके बारे में देख सकते हैं। That time the people of Israel had camped before the country of Moab. और उस समय इस्राएली लोगों ने मोआब देश के सामने अपने डेरे डाले हुए थे। And the king of Moab was very afraid of the people of Israel. और मोआब का जो राजा था वो तो इस्राएलियों से बहुत ही डर गया था। Because he knew that God was with them. क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उनके साथ हैं। And that they will be defeated. और निश्चय अगर वो मोआब से युद्ध करेंगे तो मोआब उनसे हार जाएगा। So he sent word to a man called Balaam. तो उसने बिलाम नाम के उस व्यक्ति को संदेशा भिजवा दिया। He sent a lot of gifts of gold and silver and said, come and curse a people who are in the valley, come and curse them. तो उसने उसके लिए बहुत सा सोना और बहुत से उपहार भेजे और कहा कि तू आ और इस तराई में जो लोग हैं उन लोगों को तू श्राप दे। इस तरह से उसने बुलवा भेजा। Then Balaam said, just wait, I'll find out from God what he wants me to do. और तब बिलाम ने कहा कि तुम रुको, मैं परमेश्वर से पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, और अगर वो मुझसे कहे तो मैं आऊंगा। And that night God said to him, और उस रात को परमेश्वर ने उससे कहा, do not go with them. तू इन लोगों के साथ में मत जाना। You cannot curse those people. तू उन लोगों को श्राप नहीं दे सकता है। So he came and told them, say, I can't come with you. God said, don't come with you. I can't come with you. तो उसने आकर उन लोगों से कहा कि देखो परमेश्वर ने मुझे जाने के लिए मना किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता हूँ। The next day, the people went back to the king, and then the king sent them with greater gifts. अगले ही दिन वो लोग वहाँ पर राजा के पास पहुँचे और राजा ने उन्हें और भी ज़्यादा उपहार और भी ज़्यादा धन संपत्ति देकर उसके पास में वापस भेजा। And when they came with extra gifts and extra wealth, Balaam was tempted. और जब वो और भी धन लेकर आए और भी उपहार लेकर आए तो इस समय यहाँ पर बिलाम जो है परीक्षा में पड़ गया। He said, once again you wait, I will go and ask once again. और फिर उसने कहा ठीक है तुम रुको, मैं एक बार फिर से परमेश्वर से पूछ कर आता हूँ। And this time God said, go. और फिर इस समय परमेश्वर ने कहा कि जाओ। But while Balaam was going, लेकिन जबकि बिलाम जा ही रहा था, God told an angel, stand in the road on the way. When he comes there, kill him. और परमेश्वर ने वहाँ पर अपने स्वर्गदूत से कहा कि जब वो जाए तो उस मार्ग में तू खड़े रहना और तू उसकी हत्या कर देना, ऐसी आज्ञा दी। Balaam was going on a donkey. और बिलाम वहाँ पर गधी पर सवार होकर जा रहा था। And the donkey saw the angel with the sword in the hand. और उस गधी ने स्वर्गदूत को अपने हाथ में तलवार लिए हुए देखा। उस गधी ने देखा कि स्वर्गदूत रास्ते में खड़ा है। And the donkey did not move ahead. और वो जो गधी थी वो आगे नहीं बढ़ी। It sat down. और वहीं पर बैठ गई। Or it turned out of the way. और वो रास्ते से दूर चली भी गई। And Balaam was beating the donkey. और बिलाम उस गधी को मार रहा था। And God opened the mouth of the donkey. और परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया। And the donkey spoke in Balaam's language. और वो गधी बिलाम की भाषा में बोलने लगी। God rebuked Balaam through the donkey for his foolishness. परमेश्वर ने बिलाम की मूर्खता के लिए गधी के द्वारा उसे डांटा था। And Balaam saw that angel would have killed him if he had gone ahead.
और तब बिलाम ने देखा कि यदि वो आगे बढ़ जाता तो निश्चय ही वो स्वर्गदूत उसे मार देता। He had an idol in his heart. उसके दिल में ये मूर्ति थी, ये बुत था। He loved the money. वो पैसों से प्यार करता था Wealth and money was his idol. और उसके लिए धन संपत्ति और पैसा ही सबसे बड़ी मूरत थी। And God answered him according to that idol. और परमेश्वर ने उस मूरत, उस बुत के अनुसार उसे उत्तर दिया। The will of God initially was no, don't go. शुरू से ही परमेश्वर की इच्छा यही थी कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। When Balaam came back with that idol, God said, go. लेकिन जब बिलाम उस बुत के साथ में उस भावनाओं को अपने मन में लेकर आया, तब परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुम जाओ। But it was, he would have gone to destruction. लेकिन वो तो निश्चय ही विनाश हो जाता। That donkey saved him. लेकिन उस गधी ने उसे बचा लिया। If you have an idol in your heart and you try to get the guidance from God, अगर आप अपने दिल में ऐसे बुतों को रखकर परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन पाना चाहते there हैं, will be no donkey to save you now. तो आपको अभी बचाने के लिए कोई भी गधी नहीं है। In Balaam's time, the donkey saved him. बिलाम के दिनों में वो जो गधी थी, उसने उसे बचा लिया था। Now you will have no donkey to save you. लेकिन अभी इन दिनों में आपको बचाने के लिए कोई गधी नहीं है। You might face the anger of God if you keep an idol in your heart. अगर आप अपने दिल में कोई मूर्ति रखें तो आप परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे। God said, I will not be inquired of you if you keep an idol. परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम अपने दिलों में बुतों को रखोगे तो मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा। I will not answer your prayer. मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दूंगा And you will not get a guidance. और फिर आप कोई मार्गदर्शन नहीं पाएंगे। You will not be able to find the will of God आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं ढूंढ पाएंगे until you remove those idols from your heart. जब तक कि आप अपने दिल से उन मूर्तियों को निकाल न दें। We got to understand one thing. आपको एक बात समझनी होगी, Love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind and all your strength. अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम रखना। Don't let anything come between you and God. आपके और परमेश्वर के बीच में किसी चीज को आने न दें। Don't let anything become an idol to you. कुछ भी आपके लिए कोई बुत न होने पाए। Don't let money, fame, popularity become an idol to you. पैसा, शोहरत, धन संपत्ति और विख्यात होना ये आपके लिए किसी तरह से कोई बुत न बने। Don't let your work and your hobbies become an idol to you. आप अपने कामों को और अपनी दिलचस्पी को अपने लिए कभी मूर्ति न बनने दें। Don't allow your family members to become idols to you. आप अपने परिवार के सदस्यों को अपने जीवन में किसी तरह से बुत न होने दें। Love the Lord your God with all your heart. अपने पूरे हृदय से अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखें And then you will be able to find the will of God. और फिर आप परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ पाएंगे। God will reveal His will to you. परमेश्वर अपनी इच्छा आप पर प्रकट करेंगे। But an idol will block you from finding the will of God. लेकिन ये जो बुत हैं, ये तो परमेश्वर की इच्छा को जानने में रुकावट डालेंगे। The third thing I want to talk today, तीसरी बात जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, to find the will of God in your destiny, अपनी मंजिल में परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए ये तीसरी बात है। develop an intimacy with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ में नजदीकी बनाएं। When you come to know Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं you receive the Holy Spirit into your life. तो आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा पाते हैं। Now you have to learn to develop that intimacy with the Holy Spirit. अब आपको सीखना होगा कि आप पवित्र आत्मा के साथ की उस नजदीकी को बढ़ाते चले जाएं। Learn to walk with Him, talk with Him. आप उसके साथ में बातें करना, उसके साथ में चलना सीखिए। Learn to ask Him for guidance. आप उससे मार्गदर्शन मांगना सीखिए। Many Christians don't even talk with the Holy Spirit. बहुत से विश्वासी पवित्र आत्मा से बातें भी नहीं करते हैं। We pray to God the Father, we pray Jesus' name, but we don't even fellowship with the Holy Spirit. हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम कभी भी पवित्र आत्मा के साथ में कोई संगति नहीं करते हैं। When we give the benediction, और जब यहाँ तक कि हम बेनेडिक्शन देते हैं, उस समय we say the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all for now and forever. That's what we say. हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ सदा सदा तक होती रहे। यही तो हम कहते हैं। So we say communion of the Holy Spirit. Then let us develop that communion. और जब हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा की संगति, तो आइए उस संगति को हम बढ़ाते चले जाएं। Because He is the one who knows the mind of God. क्योंकि वही है जो परमेश्वर के मन को जानता है। He knows God's will for your life. आपके जीवन के लिए वो परमेश्वर की इच्छा को जानता Because the है। Holy Spirit is God. क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। He is the Spirit of God. वो परमेश्वर की आत्मा है। And He comes to live with you, live in you. वो आपके साथ में और आपके भीतर में रहने के लिए आता है। 1 Corinthians chapter 2 and verse 9 to 12. पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9 से 12 में देखिए। It says, Eye has not seen nor ear heard
nor has entered into the heart of man the things which God has prepared for them who love him. जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। But God has revealed them to us by his Spirit, for the Spirit searches all things, even the deep things of God. परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। इस तरह से ये वचन कहता For है, what man knows the things of man except but the Spirit that is in him? Even so, the things of God knows no man but the Spirit of God. मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इस तरह ये वचन कहता है। And it says in verse 12, so we have not received the spirit of the world, but we have received the Spirit which is from God, that we might know the things that are freely given to us by God. वचन 12, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। The Holy Spirit, who knows the things of God, will take the plan and will of God for us and reveal it to us. पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर की इच्छा को जानता है, वो हमारे लिए परमेश्वर की योजनाओं को लेकर हम पर प्रकट कर देता है। We need to learn how to fellowship and commune with the Holy Spirit. हमें सीखना होगा कि हम कैसे पवित्र आत्मा के साथ में संगति करें, उसके साथ में बातचीत करें। While we are walking on the road talking, just keep talking to him as a friend, as a friend. जैसे कि हम सड़कों पर चल रहे हैं, आप उसके साथ में अपने मित्र के जैसे बातें कीजिए, जैसे कि वो आपका दोस्त है। When you are alone, just say, Holy Spirit, I need you. और जब भी आप अकेले होते हैं तो आप पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। Holy Spirit, help me to understand this thing. पवित्र आत्मा ये सब कुछ समझने में आप मेरी मदद कीजिए। The Holy Spirit has been called the counselor. पवित्र आत्मा को सलाहकार कहा गया है। He is called the comforter. उसे सांत्वना देने वाला या सहायक कहा गया है। He is the one who will guide us. वो हमारा मार्गदर्शन करेगा And he is with us on this earth right now. और वो हमारे साथ में अभी इस समय पृथ्वी पर है। When Jesus died and rose again, जब यीशु मसीह मरे और फिर से जी उठे, he ascended and sat down at the right hand of God the Father. वो उठाए गए और वो तो पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठे हैं। And Jesus said, it's good for you that I go away. और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए भला ही है, Because when I go away, I will send the Holy Spirit. क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। Now the Holy Spirit is with us. अब पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। He will teach us and he will guide us. पवित्र आत्मा ही हमें सिखाएगा और वही हमारा मार्गदर्शन करेगा। And we need to learn how to develop that fellowship with him. और हमें सीखना होगा कि हम कैसे उसके साथ में संगति बनाते जाएं। Learn to start talking with him day by day, प्रतिदिन उससे बातें करना सीखते जाएं। throughout the day. पूरे दिन भर Maintain a fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ में संगति बनाए रखिए। Ask him questions. उससे सवाल पूछिए। When you have a doubt, ask him. जब आप में कोई संदेह होता है तो उससे पूछिए। When you study the Bible, Holy Spirit, what does this mean? Ask him. जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा से पूछिए कि इसका मतलब क्या है। Holy Spirit, I'm confused about that decision. Tell me what to do. Ask him. पवित्र आत्मा, मैं इस निर्णय के बारे में गड़बड़ी में हूँ, मुझे बताइए क्या करना है। आप उससे इस तरह से पूछिए। Holy Spirit, reveal God's will for me in this area. पवित्र आत्मा, इस क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, इसे आप मुझ पर प्रकट कीजिए। My time is up for today. आज के लिए मेरा समय यहीं खत्म हो रहा है। I will continue next week. मैं अगले हफ्ते इसे जारी रखूंगा And I will complete this topic next week. और अगले हफ्ते मैं इस विषय को पूरा कर दूंगा। Have you taken the first and most important step in your life क्या आपने अपने जीवन में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया है to find the will of God for your life कि अपने जीवन के लिए आप परमेश्वर की इच्छा को जान लें and to be able to work out your destiny? और अपनी मंजिल के लिए आप काम करते चले जाएं। That most important step is to receive Jesus into your life. और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। Otherwise, you will never find the will of God. नहीं तो फिर आप परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं पाएंगे। Your whole life will be wasted going in the wrong direction. आपका पूरा जीवन गलत दिशा में जाने के कारण बर्बाद हो जाएगा And you will end up your life wasting it and ending up in the wrong place that is called hell. और आपका पूरा जीवन आप गलत जगह पर जाएंगे, आप नरक में जाकर जिंदगी बर्बाद कर देंगे। But God, that's not God wants for you. That's not what God wants for you. लेकिन परमेश्वर आपके लिए ऐसा नहीं चाहते हैं। He wants you to come to know Jesus. वो चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानें। He wants you to fellowship with him. वो चाहते हैं कि आप उसके साथ संगति करें And he wants to take you to heaven, और वो आपको स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं where he dwells. जहाँ पर वो वास करते हैं। For that you must make a decision. और इसके लिए आपको एक निर्णय लेना होगा। Believe that Jesus Christ is the Son of God. विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के He पुत्र हैं। came to this world
world, lived on this world 33 years and died on the cross because of our sins. वो इस संसार में आए, 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर उन्होंने अपना जीवन जिया और हमारे पापों के लिए उन्होंने अपना प्राण दिया, Because He loves you so much. क्योंकि वो आपसे इतना प्रेम रखते हैं। Give your life to Him. अपना जीवन आप उन्हें दीजिए, Believe on Him. आप उस पर विश्वास कीजिए। Believe what He did for you प्रभु ने आपके लिए जो किया उस पर विश्वास कीजिए and invite Him into your life, और उसे अपने जीवन में न्योता दीजिए and you will be saved. और आप उद्धार पाएंगे। You will enter your destiny. आप अपनी मंजिल में प्रवेश करेंगे। Will you pray with me now? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? Shut your eyes and pray. आइए अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। Believe with all your heart. अपने पूरे दिल से विश्वास कीजिए। Pray with all your heart. आप पूरे दिल से प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। I believe that you loved me so much that you gave your life for me. मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझसे इतना प्रेम रखते हैं कि आपने अपना जीवन मेरे लिए दे दिया। I believe you took my sin upon yourself. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। I confess all my sins to you. मैं आपके सामने अपने पापों का अंगीकार करता हूँ। Forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा कीजिए। Come into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु मेरे दिल में आइए। I give my life to you. मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। Fill me with your Holy Spirit. मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। In Jesus' name I pray. प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। And Lord, I pray for those who are sick. प्रभु मैं बीमारों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। I rebuke that sickness in Jesus' name. यीशु के नाम में मैं अभी उस बीमारी को डांटता हूँ, Whatever it is, चाहे वो जो भी हो। I rebuke it in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में अभी से डांटता हूँ। By His stripes, I decree healing in your body. यीशु ने जो कोड़े खाए उसके द्वारा मैं इन लोगों के शरीर में चंगाई की घोषणा करता हूँ। I break every curse upon you मैं इन पर के हर एक श्रापों को तोड़ता हूँ and I release God's favor upon your life. और मैं इन लोगों के जीवन पर परमेश्वर की कृपा इस समय खोलता हूँ। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Get a Bible. आप एक बाइबल लीजिए, Start studying the Bible chapter by chapter. एक एक अध्याय करके बाइबल का अध्ययन कीजिए। Your life will be transformed into like Jesus. आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के जैसे बदलता चला जाएगा। Give at least 1 hour a day for the Bible. आप दिन में कम से कम 1 घंटा बाइबल पढ़िए। Find a good fellowship. आप एक अच्छी संगति ढूंढिए, Join that fellowship. उस संगति में आप जुड़ जाइए। Pray and worship the Lord every day. प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए You will grow in your spiritual life. और आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे You will be able to walk in your destiny. और आप अपनी मंजिल तक आगे बढ़ते चले जाएंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष I'll दे। meet you next week. अगले हफ्ते मुलाकात होगी।